Good morning students. Today we will discuss about the demographic features and structural change in India. So last class we have studied about the some concept about the demography. So now we will study the demographic features and structural change. So first thing come to our mind the demographic features. The very first thing is large size and fast growth. The large size of the population and fast growth is the basic fundamental feature of any demographic setup. So as last class we have studied the population of India as per the 2011 census is 121.02 crore and it's growing annually 1.60% per annum. So as per the latest census of 2011, it states that the population of India is now 121.02 crore and the growth rate of population is 1.60%. And 1921, the year 1921 is known as the Great Divide year. Why? Now the first time the population कौन होता है first time the population diminishes. माने 1911 मसीह जो सेंसस होता 1921 मसीह जो सेंसस है प्रथम थर कि 1921 मसीह पॉपुलेशन कौन होता ना कमी थिला. So despite the second world war, famine, partition in absolute number of growth population is always follow a positive direction. Although there is a percentage of reduction, a percentage in change in population has been not so significant, but the absolute number of the population always in a positive direction. माने आमर second world war है, famine है, partition है, war है, बहुत गुड़े natural calamities है, तो after many things आज पर्यंत भी कौन है population गोटे positive trend को follow करी करी चली. तो सेटा केबे नेगेटिव को है नहीं and in terms of percentage it may be less, but in terms of absolute number the number is very high. So this is the biggest challenge to any developing country because the fast growth of the population and the large size of population is always creates hurdle in the process of economic development. जेतबळे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आमर घटुची सही परिप्रेक्षी कौन हो पॉपुलेशन साइज आमर अधिका रहिला बा आमर लार्ज साइज रहिला ताले कौन हबो आमर डेवलपमेंट ऑफ जो पेस रे डेवलपमेंट हबा कथा सही पेस रे आमर कौन होची ना डेवलपमेंट हबो नाही. यदि सही पेस रे आमर डेवलपमेंट न हैला ताले कौन हबो ना कंट्री रो जो परी डेवलपमेंट इंडिकेटर जोडाक अछि से माने प्रॉपर्ली कौन हेबे आ अप हे परिबे नाही. किंतु the large size of population and fast growth is always problem for an economy. एटा केबे सबु बेले प्रॉब्लम नुह तो डिपेंड करूची कोन ना कंट्री किभली भाबरे से रिसोर्स को यूज करूची एंड द ऑप्टिमल कैपेसिटी रे जदी पॉपुलेशन ग्रोथ गोटे कंट्री यूज करी पारिला देन द कंट्री कैन एनरिच द fruits of that population growth. The second thing is the second stage of demographic transition. The second stage of demographic transition states that what last class we have studied the second phase of demographic transition कौन होची हमरो ना 1921 पर्यंत हमें कौन थिलु first stage रे थिलु. After 1921 you can say roughly India enter into the second stage of demographic transition. Why so? It is so because कारण ये सेकेंड फेज रे हमरो कौन हुए ना बर्थ रेट हाई थिबो आउ डेथ रेट कौन थिबो हमरो लो थिबो. तो लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट दैट द बर्थ रेट इज हाई and death rate is low, so that stage is called second stage of demographic transition and India is going through this phase of demographic transition. So 1921 to 1930 birth rate per thousand was 46.4 and death rate was 36.3. And in 2011 birth rate is 17.6 whereas death rate is 7.1. And there is a clear cut significant gap between birth rate and death rate of 1921 to 2011. माने कोन होछु 1921 मसिया रे जेतले बर्थ रेट कोन थिला हमर 46.4 थिला जेतले कोन थिला हमर ना डेथ रेट थिला हमर केते 36.3 थिला. 2011 रे हमर कोन हैला बर्थ रेट केते रहला 17.6 आइला को डेथ रेट कोन कोन रहउची ना 7.1 रहउची. So in this context what happened here कि जदी there is a significant माने दुईटा जाक फेज रे birth rate is always higher than death rate, but what is a point to look after
ये कौन आम देखा कि सेठी 46.4 थिला एटी 17.6 थिला और सेठी कौन थिला 36.3 थिला डेथ रेट एटी अछि 7.1 माने कौन होची हम जो लास्ट क्लास रे पढ़ी थिले जो सेकंड फेज को हम दी भाग रे बांटी थिले गोटे होची हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट आउट थिला लोअर बर्थ रेट और लो डेथ रेट सो इंडिया कौन होची हमरो सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रो लास्ट फेज रे अछि अदरवाइज सम इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इट एज द थर्ड फेज ऑफ demographic transition roughly or the last part of the demographic transition of second phase. So this indicates in India passing through the second phase where the developed country are already in third stage or in fourth stage where they are accompanied by low birth rate and low death rate. Next thing is rapidly rising density. Density is equal to number of person living per square kilometer. Density कहले हम कौन बुझुचु ना नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर रे केते लोक माने बसवास करंती ताको हमें कहूचु तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया ऑफ दैट स्टेट ऑफ दैट कंट्री तो जे कोनोस जिंस हमें डेंसिटी कैलकुलेट करिबा हमें कौन करिबा ना सही पर्टिकुलर राज्य रो हो बा पर्टिकुलर टाउन रो हो पर्टिकुलर कंट्री रो हो हमें कौन करिबा पर स्क्वायर किलोमीटर रे केते लोक बसवास करूछंती ताको हमें कहिबा तो डेंसिटी ऑफ दैट कंट्री तो डेंसिटी वाज बेसिकली 117 ड्यूरिंग 1951 and the post immediately after the post independence हमर डेंसिटी के थिला 117 थिला डेंसिटी बतन बढ़ी कोन हेची 382 रे पहुंची गलानी 2011 सेंसस कहूची इट इज नाउ 382 माने अप्रोक्सीमेटली इन लास्ट 60 years हमें कौन करिचु हमें 3-fold ऑफ डेंसिटी हमरो इंक्रीज करिछि ताने कोन डेंसिटी काहे की बढ़िला तो डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन यदि पॉपुलेशन बढ़ी न थांता ताले हमरो डेंसिटी भी बढ़ी न थांता ताले कोन होची ना डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ कहार पॉपुलेशन यदि हमर पॉपुलेशन बढ़िला ताले डेंसिटी बढ़िबो पॉपुलेशन कमिले डेंसिटी कमिबो हम देखियो कि कंट्री वाइड डेंसिटी फर्दर in India there is no causal connection found between density population and economic development हमें बहुत गुड़े डेभलप्ड कंट्री देखुचु बेसिकली आमर जापान देखिबा बा इंग्लैंड देखिबा एटी कोन होची डेंसिटी पॉपुलेशन बढ़ुची तार इकोनॉमिक डेवलपमेंट सहित किछि ना किछि संपर्क रहउची बट इन इंडिया देयर आर मेनी केसेस इट इज फाउंड दैट देयर इज नो सच causal connection found between density of population and economic development but as in case of Japan and England there is a positive relation was established between economic development and density of population so in case of India due to low capital technology and poor human resources density of population will be burden upon the state upon the country एटी कोन होइची आमे तो कहू जे जापान बा इंग्लैंड केस रेडी कोन तांक पाखरे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज अछि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल तांक पाखरे अछि दे हैव प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज एजुकेटेड स्किल्ड एवरीथिंग बट इन केस ऑफ इंडिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ these factors the density of population leads to concentration within a particular area तो जहाँ पाई कौन होची ना हमर से एरिया उपरे तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को धीरे धीरे बर्डन तैयारी करी करी चली फर्दर it is come to high dependency ratio so what does it mean by the high dependency ratio it explains the compositions of the country's population हमें जो लास्ट क्लास में पढ़ी द एज स्ट्रक्चर से एज स्ट्रक्चर रो गोटे पैरामीटर थिला कोन हमर ना सेउठ हमें डिराइव करबा कोन ना द हाई डिपेंडेंसी रेशियो हमें कोन करथुलु 0 रु 15 15 रु 60 14 15 रु 60 60 एबो बट यूएन रिपोर्ट कोन कहूची से कहू जे 0 रु 14 15 रु 64 से नउची कोन ना वर्किंग एज बट इंडिया में कोन नउचु 15 रु 60 तो ये जो हाई डिपेंडेंसी रेशियो माने कोन ना गोटे लोक उपरे आउ केते जण लोक डिपेंड करूछंती दैट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंसी रेशियो एटा कोन करछि द डिपेंडेंसी रेशियो क्लियर पिक्चर दिए कहार इट एक्सप्लेन्स द कंपोजिशन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कि गोटे कंट्री रे जेतिकी जनसंख्या बसवास करूछंती
तांकर कंपोजिशन कौन अच्छी तांको भितरे केते पिला अछंती केते लोक काम करि पारुछंती केते लोक काम करके ऑलरेडी वृद्ध हे सारिलेनी तो दैट कंपोजिशन वाज एक्सप्लेन्ड composition is explained by the dependency ratio. So the population basically divided in कौन तीनटा ग्रुप कौन होची 0 ରୁ 14 15 ରୁ 60 आउट होची 60 years above. The first and third group basically consist of non working population. आमर जो 0 ରୁ 14 रहउची बा 60 प्लस रहउची एमान कौन ना द बेसिकली दे आर non working population. So as per the 2001 census, children below 15 years were 35.36 and as per 2011 it is 29. So what happened here, this high dependency ratio, it states that कि पिला मानकर कौन होची ना जो पिला मानकर जो संख्या अच्छी in terms of percentage it may be reducing but in terms of absolute number this ratio keeps on increasing. This is because a high dependency ratio kahinki paduchi na this is because high birth rate which is not good for the future and development perspective of India. A dependency ratio amar kahinki paduchi na amar high birth rate au low death rate जेउटू आमर मेडिकल फैसिलिटी भल हो गला आमर एजुकेशन फैसिलिटी धीरे धीरे बढ़िलानी आमर अदर फैसिलिटीज लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो बा जहाँ किसी हो सब जिनस कौन है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है डेवलपमेंट हम तो मनीषर जे बंचा शैली रे इम्प्रूवमेंट हम जिते इम्प्रूवमेंट होती तो डेफिनेटली आम डेथ रेट कौन है धीरे धीरे कमी डेथ रेट आम कमी बार्थ रेट आम कौन है बढ़ी द्वारा कौन है डिपेंडेंसी रेशियो आल्सो इनक्रीज्ड जो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ी दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया फॉर द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव. Further it is said that massive rural population. As we know the India, Mahatma Gandhi said that जदि भारत को देखिया को चाहूँ ताले कौन करें हमें गाँव ठू देखिबा आरंभ करिबा ताले कौन होची प्रथम जिनस होतले इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला परे परे 1951 जेतले सेंसस रे कौन होची the rural population was 82.7 and urban population was 17.3%. माने 1951 मसीह कौन है रूरल population was very high and urban population was very low because at that time the number of cities are very less and people basically depending upon the agriculture. But in 2011 the rural population was 68.84% and urban population was 31.16%. That means if you take the population of 120 crore in 2011 then approximately 82 crores people are living in rural area and rest the 28 crores they are living in the urban area, 38 crores they are living in the urban area. That means the rural and urban, the number, the percentage of population has been not so much decreasing, but the absolute number has already increased in the urban area. So the rural population still now in India is a major population is a rural population. So this explains the Indian planning process failed to pace the process of industrialization and urbanization. The story which was explained by above two line 1951 and 2011 census 82.7 to 68.4 rural, 17.3 to 31.6 urban. This explains somehow the Indian planning process fails to materialize its industrialization and urbanization process. If the industrialization, jodi industrialization heithanta, au properly industrialization heithile, properly urbanization develop karithile, kon heithanta na definitely the urbanization amar kon heithanta बढ़ी था. Proper planning urbanization, proper planned urbanization किछि आज पर्यंत सिस्टमेटिकली है नहीं. ऑल ओवर इंडिया रे देखिया गले अति बेसी रे 15 टू 20 सिटी भर प्रॉपर प्लानिंग रे अर्बानाइज्ड हेथिबे. इन केस ऑफ वेस्टर्न कंट्री पैटर्न होची एग्जैक्टली रिवर्स. तांकर अर्बानाइजेशन बहुत अधिका और रूरल सेटलमेंट बहुत कम. तांकर काहे ना हेटी अर्बन अम्यूनिटी लोकम पाखरे पहुंचाई दिया होची. द रूरल एरिया कोन धीरे धीरे कोन हलानी ना रूरल एरिया became urbanized. ताल कोन द वेस्टर्न कंट्री रे द एग्जैक्टली क्वाइट रिवर्स
what is the situation at present in the India. So, the heavy concentration of population also reflect the dominance of agriculture. एटी कौन देखौछि कि हेवी कंसंट्रेशन पॉपुलेशन जो रूरल एरिया रे अछंती दैट रिफ्लेक्ट्स कि आज पर्यंत भी 70 वर्ष परे भी हमर एग्रीकल्चर इज ए प्रीडोमिनेंस इन रूरल बेल्ट. Come to the next point is sex composition. The sex composition basically the story tells about the unfavorable to the women. The 1901 there were 972 female in 1000 male. तो 1901 मसीह कौन थला ना 972 female थिले 1000 male थिले. तो 900 बर्तन 2001 मसीह कौन हैला ना 1000 male रे 927 रहले हमर female. 2011 रे कौन हैला दैट स्लाइटली इंप्रूव कला 927 रु 940 को आसिला. तान एटी स्टोरी कौन देखौछि हमर डाटा कौन देखौछि कि 1901 मसीह रे द मेल फीमेल रेशियो जहा थिला प्रेजेंटली द मेल फीमेल रेशियो हमर कौन हिस ताठू बहुत कमी जाइछि. तो 2001 मसीह रे बहुत अलार्मिंग थिला 11 सेंसस कहउछि किछि मात्रा रे बढ़िछि. तो इन टर्म्स ऑफ द मेल फीमेल रेशियो देखिबा रिगार्डिंग द सेक्स कंपोजिशन तो केरला होछि सबटू हाईएस्ट माने केरला रे कोन हिची ना फेवरेबल प्रति 1000 मेल रे सेठी कोन ना 1084 फीमेल अछंती. तो केरला द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जोटे कोन हिची ना फेवरेबल द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन. बट अगेन इफ यू टेक टू 0 to 6 ईयर इट इज 914. यदि हम कोन करिबा हम केवल 0 रु 6 वर्ष नबा माने 6 वर्ष पर्यंत पिला मानकर जो माने आसंता काली देशर सेक्स रेशियो को डिटरमाइन करिवे कि देशर सेक्स रेशियो कौन हबो यदि हमें सही पिलांकर सेक्स रेशियो को नबा 0 to 6 को तार कौन होची इट इज 914 व्हिच इज वेरी मच अलार्मिंग. कौन होच बर्तमान 2011 सेंसस कौन कहूची 940 तो 0 to 6 कहूची कौन 914 तन कौन हबो एई जो 0 to 6 ईयर पिला माने ये आसंता किछि वर्ष पर कौन हबो ना दे विल डिटरमाइन व्हाट विल बी द सेक्स रेशियो. काहे कि आमे पढिले जो हायर डिपेंडेंसी रेशियो ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट डिपेंडेंसी रेशियो कौन बहुत हाई ताले कौन हबो ना एई पिला माने आसंता काली कौन हेबे ना द सेक्स कंपोजिशन इंडिया रा कौन रहिबो तांको द्वारा डिटरमाइन करा जाय परिबो. सो सेही डिटरमाइन देखले हम कौन देखुचे कि दैट इज ओनली 914 which is a very alarming position. Reasons कौन कहीं के बड़े परिवर्तन घटुची सेक्स कंपोजिशन रे ना रीजन्स होची इलिटरेसी किलिंग ऑफ फीमेल फोइटस सोशल ब्लाइंड बिलीफ्स. आम लोकों भीतर साक्षरता नहीं आमर इंडिया रे इलिटरेट मानकर संख्या बहुत अधिक. सेकेंड थिंग होची किलिंग ऑफ फीमेल फोइटस आमर झील मानू सेक्स डिटेक्शन करा जाए कि गर्भ रे कौन तांकू मारि दिया जाउची बा जन्म हैला परे भी तांकू फोपाड़ी दिया जाउची ता द्वारा कौन होची ना दिस रीजन्स को कौन होची हमर सब दिन सेक्स कंपोजिशन हमर अनफेवरेबल फॉर द वुमेन रहउची. नेक्स्ट इज लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट. लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट माने हमर लेबर फोर्स जो अछि 15 रु 59 एज पॉपुलेशन द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू द टोटल is referred as an workforce participation rate माने रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन. जदि आमे वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दबा ताले हमें कोन पाइबा तो रेशियो ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट से कोन देखौची ना 43% थिला हमर 1961 रे सेटा कमी केते हला 37.6%. Further it slightly improved to 39.80. It means that 60% are only consumers without any productivity. माने कौन देखौछि हमर कि हमर एई एज ग्रुप रे एते की वर्क फोर्स हमर काम करूछंती. तो as per the latest census of 2011 कि हमर जेति की अछंती पॉपुलेशन वर्क फोर्स रे तार 60% पॉपुलेशन कोन खाली कंज्यूम करूछंती विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी. So why we focusing upon the word productivity? Productivity is important because without productivity आम देशर कौन हम डेभलपमेंट हो पार ना. आम गोटे लेबर दक्षता
लेबर रो काम करिवार कुशलता कोउथरे मापू तार प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी उपरे गोटे लेबर निजर श्रम को खर्च करी गोटे दिन रे केतेटा इटा जोड़ी पारिला दैट इज हिज प्रोडक्टिविटी गोटे लोक केते धान काटी पारिला दैट इज हिज प्रोडक्टिविटी तन कोन the productivity determines the national income of the country productivity determines the pace of development of the country but here what happens na 60% of the population just a consumer and for 39.80 they are the workforce participation and the female participation rate is only 27.2%. The female participation rate is only 27.2% indicates that simply indicates that there is a male domination in the workforce participation rate and the bottom heavy structure and low rate of women employment is responsible for low work participation. Bottom heavy structure means high dependency ratio or 0 to 14 जो पिला माने रहिले तांकर संख्या अधिक आ women employment ओमेन मानकर जो एम्प्लॉयमेंट हबा कथा तांकर मध्य संख्या कम हेतु हमर कोन होची ना पार्टिसिपेशन इन लो वर्क participation rate in India. So that low work participation rate is simply indicates the 60% of people without any productivity. That means the process of development must be slower in case of India, which is not a good sign. Further, low quality of population, that is first thing is low level of literacy. And I am low level of literacy ताठू आहुरी गोटे बड़ प्रॉब्लम होची how you determine the literacy. आमे literacy कौन कहूचु जे गोटे जिनसो पढ़ी पारुथुबो कहि पार लिखि पारुथुबो कहि पारुथुबो he is literate or she is literate. But this definition what was in the during the time of independence has not revised yet. But in case of developed country their definition of literacy is always changing. Like if you take the literacy status of the Canada, I think 90% of India or 95% of the Indians will be illiterate. What they are saying, they have to run a computer programming, then you will be literate. So in case of that the low level of literacy with this number कि गोटे भाषा को कहि पारुथुबो लिखि पारुथुबो पढ़ी पारुथुबो with this condition only 74.4% people are literate as per the 2011 census and from that 82.14 male and 65.46 female. तार्थ कौन होची कि आमर ए मेजरमेंट को नहीं कि ओनली 74% आमर लिटरेट अच्छंती और जा देहरु 82% आमर मेल अच्छंती आउ 65% आमर कौन अच्छंती फीमेल अच्छंती. And further the low level of education and training. The low level of education without this productivity you cannot increase. Like आमर जो एजुकेशन में परीक्षा होची पिला मानक मुंडे होची गोटे परीक्षा दियो पास कर जा नेक्स्ट क्लास को चला नेक्स्ट क्लास को चला 10 सरला +2 चला +2 चला +3 चला बट आमे सिखुचे कोन जो पर्यंत आमे न सिखिचे पर्यंत कोन हमर प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करि परिबो नाही आ जो पर्यंत प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करी नाही प्रोडक्टिविटी केमिति इनक्रीज करिवो दैट इज थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग. दैट प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग जो पर्यंत पिलवान को न दिया हिची ताल कोन हबो हमर प्रोडक्टिविटी बढ़ी परिबो नाही. India's adult literacy ratio like doctors engineers per million of population are very low comparison to China and Sri Lanka. यदि आम देखिए आम साउथ ईस्ट एशिया कंट्री रे चाइना जोटी पॉपुलेशन आमठू बहुत अधिका और श्रीलंका जो जार पर कैपिटा इनकम आमठू कम इन दैट आम दीटा को आम कंपेयर करवा आमर एडल्ट लिटरेसी रेशियो आमर डॉक्टर्स पर हेड इंजीनियर्स पर मिलियन पॉपुलेशन रे कौन होची आमर तांको ठारू बहुत कम रे आमे अच्छु. Further low life expectancy in India it is 68.5 in 2011, 63.9 in 2001, whereas Japan it is 80 and Norway it is 80.5. ताने कौन low life expectancy माने कौन गोटे मनीष on an average केते वर्ष बंची पारिबो. भारत आम भारत रे कौन होईची ना 2001 मसिया रे एटा 63.9 थिला whereas 2011 it is 68.5. But in case of Japan it is 80 वर्ष और in case of Norway it is 80.5 year.
कारण कौन देखौछि कि जो तीनटा कंपोजिशन रहिला लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। हम तो देखुचे all the Scandinavian countries, Norway, Sweden, Finland, all are in everything सबुथे से आगुआ अच्छा सबू इंडेक्स रे कहीं ना देयर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी गुड, बट इन केस ऑफ इंडिया आवर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। फर्दर इज दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड, दीज आर द प्रॉब्लम्स वी हैव स्टडीड कि इंडिया रे बहुत प्रकार प्रॉब्लम अच्छी एई भली भाव रे प्रॉब्लम माने सब क्षेत्र रे हम देखिले कि इंडियन इकोनॉमी रे पॉपुलेशन को धरिले हमर विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम अच्छी कौन कौन प्रॉब्लम जो किभली आमे प्रॉब्लम फेस करि परिबा, दैट इज द हमर प्रोस्पेक्ट पळैला। बर्तन देखिया गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन पॉपुलेशन बर्तमान इंडिया रे कॉन्टेक्स्ट रे डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम तो न्यूज़ पेपर खोलुचे आज के डेट रे सब जगह वर्ड आसुची कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड माने अर्थ होछ कोन कि हमर किछि रिटर्न हम पाउची। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अकर्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पीपल in the total population is high, because this indicates that more people have the potential to productive and contribute to the growth of the economy। माने को सिंपल वर्ड रे कहिया को गले जदि हम पाखरे अधिका पॉपुलेशन अछंती ता माने नुह जे पॉपुलेशन इज ऑलवेज ए बर्डन फॉर द इकोनॉमी। आई रिपीट अगेन, पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज ए बर्डन फॉर एन इकोनॉमी। व्हाई? पॉपुलेशन भी बर्डन है न पारे केतबळे जदि पॉपुलेशन पाखरे पोटेंशियल प्रोडक्टिवनेस रहिबो। यदि पॉपुलेशन हमर कोन रहिबो तम पाखरे पोटेंशियल प्रोडक्टिवनेस रहिबो एंड दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, देन दैट विल बी कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिविडेंड। माने पॉपुलेशन वृद्धि हबा जोगु आमे से जिंस कोन पाई पारिलु। फॉर एग्जांपल जदि हम पाखरे प्रॉपर स्किल्ड इंजीनियर्स रहिले, हम पाखरे प्रॉपर स्किल्ड डॉक्टर्स रहिले, ताल कोन हबो ना आमे माने कोन करिवे बाहर को जाई परिबे समस्ते माने बाहर कोन करिवे, दे कैन अर्न फ्रॉम अमेरिका, दे कैन अर्न फ्रॉम जापान, दे कैन अर्न फ्रॉम इंग्लैंड। ताल कोन करिवे से मान से पैसा कोन करिवे भारत को पठेइबे, ताल कोन हबो डेफिनेटली भारत कोन करिवो ग्रो करिवो। बा आमे जो आज का डेट रे हम देखुचे किछटा बड़ा बड़ा रोग हैला, फॉर एग्जांपल कैंसर देखंतु बा किडनी रोग देखंतु, एवला किछि बड़ा बड़ा रोग हेले कोन होउचे आमे समस्त कोन करछे फॉरेन को पळौछु। काहे कि तांग पाखरे टेक्नोलॉजी भलो अछि, तांग पाखरे मेडिकल स्टैंडर्ड भलो अछि, तांग पाखरे डॉक्टर्स भलो अछंती, बट जदि सेही जिनिस इंडिया रे अवेलेबल हबो केमिति हबो ना हम पाखरे सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़िबो, हमर प्रोडक्टिवनेस बढ़िबो, आमे प्रॉपर्ली स्किल्ड हबा, प्रॉपर्ली एजुकेटेड हबा, तो हमको भल बेटर स्कोप रहिबो। सो इन दैट केस वी कैन से द डेमोग्राफिक पॉपुलेशन हमर कोन हबो ना डेमोग्राफिक डिविडेंड हे परिबो। बट फॉर अनदर प्रॉब्लम इज दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड जो माने प्रॉपर्ली ट्रेंड हे गले, वेल एजुकेटेड हे गले, दे मस्ट हैव प्रॉपर स्कोप टू एडजस्ट और एक्सप्रेस देयर टैलेंट। यदि से जिंस न रहिला तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जे केवल गोटे साइड रु हे गले हे जिवो, नो दैट इज नॉट। हमको दी साइड रु दरकार, हमको ट्रेनिंग दरकार, स्किल दरकार, हमको प्रॉपर अब्जर्वेशन जगह भी दरकार, हम कोठी हमको एक्सप्लोर करि परिबा। तेम देखिबा टॉप इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोठू ना इंडिया रो काम करछि कोठी अमेरिका रे, टॉप मोस्ट डॉक्टर कोठिकार ना इंडिया रे काम करछि कोठी अमेरिका रे, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इंडिया रो काम करछि कोठी नासा रे। तार कोन होछि काहे से माने पळौछंती अमेरिका ब्रिटेन, व्हाई हमर इकोनॉमिस्ट टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट सबु कि बाहर, तो काहे कि व्हाई because they are not getting any kind of proper opportunity in India। तो जो पर्यंत प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली नहीं से पर्यंत स्किल्ड हेले भी, ट्रेंड हेले भी, प्रोडक्टिव हेले भी सेटा हम निज देश पई कि किछि काम रे आसी परिबो नहीं। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड मस्ट नीड द टू साइड ऑफ कॉइन कि हम पाखरे स्किल भी रहिबो, हम पाखरे स्कोप भी रहिबो। सो दिस इज द स्कोप ऑफ द फ्यूचर एंड दिस इज द जदि एई डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बा पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें प्रॉपर्ली यूज करि परिबा, दिस इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ इंडिया टू एक्सेलरेट इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस। जदि हम प्रॉपर्ली याको मैनेज करि परिबा, प्रॉपर्ली याको एड्रेस करि परिबा, एवरी इश्यू को हम प्रॉपर्ली एड्रेस करि परिबा, ताले कोन हबो हमें डेवलपमेंट प्रोसेस को भी कोन करि परिबा एक्सेलरेट करि परिबा। So one of the studies says that by 2040 in every 4 worker in the world there will be 1 Indian, but for that India need to develop its resource optimally।
2040 मसीहा बेलू आम जदि पृथ्वी रे प्रति 4टी वर्कर जन को बाछिबा ताले प्रति 4टा वर्कर रे जणे लेखा इंडियन निहाती भाबरे थिबे काहेकि ना वी हैव दैट पोटेंशियल वी हैव दैट यंग जनरेशन that leading the India right now. But that dream could be successful if India used its resource optimally. How can we India use its resources? India resource can be used through proper education, training and skill development programs. So economic survey report it states that 2018-19 मसीह कौन थिला 93% of our workforce engaged in the unorganized sector. Unorganized sector माने कौन ना unorganized sector कहले जहार किछि accountability नथिबो जो सेक्टर किछि हमर जीएसटी भरुनी कि जो सेक्टर रे किछि हमर प्रॉब्लम हेले हमक बेसिकली दैट इज अनरिपोर्टेड तो एटी कोन होची ए द कोविड पीरियड रे दैट एक्सप्लोड ये जो प्रॉब्लम हेला अनऑर्गेनाइज सेक्टर काहे कि बेसिकली न्यूज रे आसिला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड ए कोविड पीरियड कोन हेला ए जो 93% ऑफ द पॉपुलेशन बा द workforce engaged in the unorganized sector they lost their job immediately due to lockdown and shutdown. So that economic survey report explains कि that demography जदि एई भली भाबरे चलीला 93% workforce जदि हमर unorganized हेले ताहले we never achieve the demographic dividend in near future. Further we come to the structural change of the Indian economy. So this story about the demography part and this come to a new part of the structural change of the Indian economy, which is a small part, but the structural change we need to understand this structural change. Why? Because the Indian economy changed a lot from 1951 to 2021. So how it changes, why it changes and the change is successful or not, that change is explained by the structural change. The name itself explains structural change means change in the structure. What structure? आमे कहउतले कोन आमे तो देखुचे वेरी फास्ट क्लास में पढ़िथिले आमे जेतेबेले भी इकोनॉमी कथा एनालिसिस करिबा द वेरी फर्स्ट पॉइंट कम टू आवर माइंड इज जीडीपी बा नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम दैट एक्सप्लेन्स how this GDP is increasing year by year, how national income is increasing year by year and what kind of structure governs को भले structure अच्छी जे कि govern करूची कि आमर national income बढ़िबो आमर GDP बढ़िबो. So that change in structure is called structural change. So the structural change refers to a dramatic shift in the way a country or industry or market operates, usually brought through by major economic developments. आमे तो देखुचे country either governed by the industry, agriculture or market forces, anything by which there is a dramatic shift from one point to another point, usually brought by the major economic development. आमे पढ़ितले कोन डेवलपमेंट होज कोन ग्रोथ प्लस कंटीन्यूअस चेंजेस कोन मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैला जो थिरे कि हमर contribution to the national income has been changed over a period of time. So the study can be analyzed through the contribution of different sector to the national output. हम पढ़िथिले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. ये जो तीनटा सेक्टर रा contribution to the national output that can be analyzed through the structural change chain. The occupational distribution of workforce also get reflected through this. आमे तो स्ट्रक्चरल चेंज पढ़िबा आमे कोन जानि परिबा कि ऑक्युपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स जे आम देश रे जति कि वर्कफोर्स काम करूछंती सेही वर्कफोर्स भितिरु को ऑक्युपेशन रे केते लोक काम करूछंती कोठु केते नेशनल इनकम आसुची आ जदी आसुची ता द्वारा केते लोक हमर माने लाभवान हेई पारुछंती दैट reflected through the structural change. Also it indicates the extent of change in the structure of production. आमर जो प्रोडक्शन प्रोसेस रहुची द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रे आमर द एक्सटेंट ऑफ चेंज माने माने इंडिया 1951 मसिया रे जेति कि डिपेंड करूथला एग्रीकल्चर ऊपर आज सेति कि डिपेंड करूची ना नहीं आज सेति कि इंडस्ट्री ऊपर डिपेंड करूची ना नहीं आज सेति कि सर्विस ऊपर डिपेंड करूची ना नहीं ता देहते किछि परिवर्तन घटिची ताहले काहे कि घटिची दैट आल्सो एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चरल चेंज माने कोन हैला हमर it can analyze the national output, it can analyze the
occupational distribution, it can analyze the structure in the change in the production pattern. So, these things can be analyzed by the help of structural change. So, it is a tabular representation of structural change of data. So, through this table we can get some rough idea about how the structural composition has been changed over the year. So, first thing is economic activity आम तीन भाग में डिवाइड करुचे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ताको आम कौन लिखिचे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और टर्शियरी सेक्टर माने एग्रीकल्चर होची प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी टर्शियरी होची थर्ड होची हमर टर्शियरी सेक्टर सर्विस बा सर्विस सेक्टर. तो 1950-51 कौन थिला the contribution of agriculture was 56.5% and the industry was 13.6% and tertiary sector was 29.9%. And again in 1980-81 कौन हैला the agriculture is 39.6%, industry is 24.4% and tertiary is 36%. So, first compare these 2 year 1950-51, 1980-81. So, 1950-51 to 80-81 कौन देखौछि हमर कि एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम कौन है हमर कमिची 56.5 रु 39.6 को आसी. सेकेंडली इंडस्ट्री कौन है हमर 13.6 रु 24.4 को हमर कौन है बढ़ी कौन है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इज 24.4 माने कौन इंडस्ट्री हमर बढ़ी. सेमती सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर कौन है हमर 29.9 रु 36% को हमर आसी. अगेन 1990-91 कौन है now the contribution of agriculture is 32.2, contribution of industry is 27, contribution of service sector tertiary sector is 40.6 and कौन है same pattern follow कि agriculture कमिची industry somehow बढ़ी service sector बढ़ी but the growth of industry is less than service sector in real number, in percentage, in every figure. Further 2001 1991 रे कौन हैला हमरा LPG policy introduce हैला liberalization privatization और globalization policy. After that 2001-2002 रे कौन हैला ना agriculture has been drastically fall to 24%, industry also fall to 26.7% and tertiary service sector कौन है हमरा 49.3 को पड़ै. So this is the marking year 1991 रू 2001 to 80 के मार्क करबा कोन एटी एग्रीकल्चर फॉल कला एटी इंडस्ट्री फॉल कला एटी कौन ग्रोथ कला एटी हमरा सर्विस सेक्टर ग्रोथ कला. तो आम जेहेतु गोटे इकोनोमी सब कौन हुए गोटे सिस्टमेटिक वे डेभलप हम प्रथम एग्रीकल्चर डेभलप हम एग्रीकल्चर डेभलप होला इंडस्ट्री डेभलप हम इंडस्ट्री डेभलप होले कौन हम हमरा सर्विस सेक्टर डेभलप हम. तो ये डाटा आम देखि पड़ुथिबा कि इमिडिएटली आफ्टर एग्रीकल्चर कौन है हमर ना हमर टर्शियरी सेक्टर हम डेभलप होइछि एग्रीकल्चर पर कौन है हमर टर्शियरी सेक्टर डेभलप होइछि. तो एठो हम कौन देखिया देयर इज ए गैप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के ओवरलैप करी कौन होइछि टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ होइछि. आमे देखिया 2020-21 लेटेस्ट डाटा कौन कहूछि द एग्रीकल्चर समहाउ ग्रोन टू 20%. माने दिस इज द फिगर 2020-21 रे प्रायतः लास्ट 17 वर्ष रे एग्रीकल्चर के 20% छुई नथिला. एबे प्रथम थर पय कि दैट मे बी शॉर्ट टर्म मे बी लॉन्ग टर्म कमिंग ईयर हम जानि परिबा कि 20-21 मसिया रे द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम केते अछि 20.19, इंडस्ट्री अछि 25.92 and the tertiary sector अछि 53.89. ताने कौन है the service sector growth or the service sector contribution to the national income has significantly increases over the year from 1952 till 2021. Service sector has started the journey from 29.9% to 53.89%, and industry which was started the journey from 13.6% it is now just 25.92%, and agriculture which was started journey 56.5% to 20.19%. ताने कौन कहूची the contribution of these sectors to the national income over the year कौन है हमरा decrease करिची, whereas over the year of the contribution of tertiary sector has significantly increases. ताने कौन हम पढ़िले the structural changes हेची इंडिया रे. yes इंडिया रे structural change हेची काहे कि ना आगुर जो आम एग्रीकल्चर ऊपर डिपेंड करुले आम बर्तमान कौन करुचे आम से मोस्टली सर्विस सेक्टर ऊपर डिपेंड करुचे. सर्विस सेक्टर रु आमर इनकम अधिक आसुची. द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जेहेतु आमर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी ताले कौन आम कहिबा द स्ट्रक्चरल चेंज इंडिया आमर हेची and that structural change also affect the country's national income.
आउ आम सब कहूचे इंडियन ग्रोथ इज ए सर्विस लेड ग्रोथ आम कहीं कहे ना आमर सब सर्विस सेक्टर आमर ग्रोथ करुच्ची तो आधे प्रोब्लेम अच्छी कि आधे प्रोब्लेम अच्छी कहीं ना सब सर्विस सेक्टर प्रोडक्टिविटी जोगाई थाए ताहा नुह सर्विस सेक्टर भी किस जगह इनकम होता है विदाउट मच प्रोडक्टिविटी जो विदाउट मच प्रोडक्टिविटी रे सर्विस सेक्टर आमर ग्रो करें जो आमर कौन हुए ना देशर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी ग्रोथ करे ना से कौन कह देयर इज ए सिस्टमेटिकली ग्रोथ ऑफ एवरी कंट्री रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर ग्रो करिवो देन इंडस्ट्री ग्रो करिवो देन सर्विस सेक्टर ग्रो करिवो ताले कौन हम ग्रोथ सहित प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो पारिबो किंतु एठी कौन होछि हमर जेहेतु इंडस्ट्री मझिरु टिके गैप रही गला ताले हमर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो पारु नाही ताले कौन होछि हमर सब देयर इज ए गैप एग्जिस्ट करूछि इन बिटवीन डेवलपमेंट सो देयर इज ए ह्यूज इनइक्वालिटी इन इंडिया ग्रोइंग रिसेंट डेज Next come to the points, what are the major factors that responsible for the structural changes. First thing is the breakdown of the age old isolation of the village. The breakdown means for more than 2.5 centuries before independence the Indian village had remained isolated where subsistence farming was the main occupation. माने भारतर स्वाधीनता पूर्व स्वाधीनता परे परे भी हमर कोन थिला ना विलेज रा मेनली आइसोलेटेड थिला आ तांकर मेन ऑक्युपेशन थिला कोन फार्मिंग. However, in the post-independence period, the old structure based on the self-sufficiency gradually yield the place to a fundamentally different kind of organization structure in which village started producing the external market and acquiring some of its consumption from outside. So, this has occurred mainly due to improvement in the communication system and both domestic and as well as in foreign cases. तो कौन होची ना हमर जति की इंडिपेंडेंस पूर्वर कौन थिला गाँ माने पूरा सेल्फ सफिशिएंट थिले तो सेठू आम कौन देखुतलु ना तांकर जहाँ प्रोडक्शन होउतला ताकू से माने कंज्यूम करूतिले बट आफ्टर इंडिपेंडेंस व पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रे विलेज कौन हेले विलेज माने एक्सटर्नल मार्केट सहित कौन हेले अटैच हेले ता द्वारा कौन हैला से माने जो सेल्फ सफिशिएंसी थिला ताले कौन हबो सेल्फ सफिशिएंसी बिकम सेल्फ सफिशिएंसी और रहिला नाही ता द्वारा जने कौन कले ना बाहरु किछि जिनिस मगिया को आरंभ कले ता द्वारा कौन काहे के आसिला ना ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट इन द रोड तो कौन हैला हमर रूरल एरिया रो अर्बन एरिया सहित अटैचमेंट बढ़िला जहा द्वारा कौन हैला ना द एज ओल्ड आइसोलेशन सिस्टम ऑफ द विलेज कौन हैला हमर धीरे धीरे भांगी गला. Second thing is development of competitive and acquisitive outlook. In the post-independence period, there was a competition for the acquiring limited stock of land through bidding process. The growing demand for a fixed stock of land led to rise in the rent per acre. आम जानी समझते land is always in fixed in nature. जेहेतु land fixed in nature, लोकों पाखरे इनकम बढ़िला, लोकों कौन कले लैंड रो डिमांड करिया को लागिले जण कला मु 30,000 देबी जण कला मु 40,000 देबी कोन हला देयर इज ए बिडिंग बिटवीन द ओनर्स फॉर द लैंड ताल कोन हबो द रेंट पर एकर कोन धीरे धीरे कोन हमरा बढ़िया को लागिला. सो देयर इज ए कंपटीशन ऑफ द प्रोफेशनल सक्सेस एज आल्सो फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. जेहेतु हमर एग्रीकल्चर को नै कि आज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ट्रेडिंग फ्लोरिश करूची हम देखिबा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आसलानी बा वेरियस काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फार्मिंग आसलानी में कौन होची इन केस ऑफ दैट प्रोफेशनल सक्सेस also attract new industry and commercial partners for the trading purpose. कंपटीशन जो है लोक भितर से कौन करुच्ची लोक फोर्स करुच्ची कि तुम न्यू नॉलेज डेवलप कर न्यू टेक्निक प्रोडक्शन डेवलप कर जो कौन हम ना अधिक अधिक प्रोडक्ट कौन हम मार्केट रे आसी पारिबो माने लोक मैंने जहाँ चाहूँगी से अनुसार लोकंकर डिमांड अनुसार मार्केट को जिनिस आसवाक दरकार से कौन है ये जो नुआ डिमांड आसिला नुआ वांट्स आसिला से कौन कला ओल्ड एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आज डेट कौन कला हमको अलग करदेला. नेक्स्ट होची extension of economic activities of the state. For quite some time, the new economic structure in India has been characterized by large degree of participation of the state of economic matter. So, this tendency really gained a momentum during the planning process. आमर जो planning process आरंभ होला ए ट्रेंड जो स्टार्ट ही चलला. The government of India हम कौन करथिला ना इंट्रोड्यूस करथिला कौन फर्स्ट 5 year plan 1951 रे
So that plan is most entirely responsibility for the development of planning of the state agencies. ये जो प्लानिंग आरंभ है प्रति 5 year प्लान आम रहा कौटी केते खर्च करा जिवो जो खर्च करा गला तार रिजल्ट अनुसार आज कौन हो स्ट्रक्चरल चेंजेस द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग इन इंडिया इज द realization of social pattern of the society, socialist pattern of the society in which all the economic activities will be performed by the spirit of social service and all sections of society will share the fruit of economic progress in an equitable manner. ये जो प्लानिंग रो जो जिनस रहिला हमर कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी आमे जहाँ भी होउची सोसाइटी पाई कि होउची आ सब जिनस लोकन भितर शेयर करा जीवो दैट आल्सो that extension of economic activities from center to state or from urban to rural area also break the structural old structural system and now coming to the new structure of new structural changes. Increase in the labor mobility and the relaxation of the rules relating to the occupational choice. The planning period is characterized by an increase in the labor mobility. Planning period रे हमर कोन हला हमर लेबर मोबिलिटी कोन धीरे धीरे हमर बढ़िबा को लागिला बोथ ज्योग्राफिकल एंड ऑक्युपेशनल ता आगुरु कोन थिला लेबर मोबिलिटी रिजिड थिला लोक माने गोटे जगह रो आ गोटे जगह को आसिया को पसंद करू नथिले लोक माने गां रो शहर को आसिया को पसंद करू नथिले जो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी हो बा ऑक्युपेशनल मोबिलिटी हो माने कर ऑक्युपेशनल मोबिलिटी माने गोटे लोकटे राजमिस्त्री काम करूची ताको गां रे आउ समस्त चाଳ घर अछि तार कोठा घर करे के इंटरेस्टेड नाहंती टाउन रे किंतु कोठा घर होउची सी सेतबेले चाकरी पाइबो सेतबेले से ऑक्युपेशन पाइबो जेतबेले से गां रु टाउन को आसीबो सो दैट ऑक्युपेशनल मोबिलिटी कोन थिला आगुरु नथिला काहे कि देयर वेरियस रीजंस तो सेति पाई कि किंतु जल प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हैला लेबर मोबिलिटी स्टार्ट हैला धीरे धीरे कोन हैला ज्योग्राफिकल मोबिलिटी आरंभ हैला एज वेल एज ऑक्युपेशनल मोबिलिटी भी हमर आरंभ हैला as several new industries were set up various new types of trade and professions also emerged जेतबेले नुआ नुआ इंडस्ट्री हमर सेट करा गला तेतबेले कोन हला ना बहुत नुआ प्रकार ट्रेड बाहरिला बहुत प्रोफेशंस आल्सो इमर्ज कला माने जोडा को प्रोफेशन माने कोन हम देखिबा बर्तन देखिबा ओला गोटे कि ओयो गोटे हो ये सब कोन माने एमन को किछि निजर किछि बेस नाही बट दे आर डूइंग ट्रेड से माने कोन व्यापार करूछंती ओला रो निजर कार नाही बट सी कौन कर कार बिजनेस करुच्ची ओयोर निजर होटेल ना से होटेल रूम दौची आमर जोमाटोर निजर किसी रेस्टोरेंट ना से फूड डेलीवरी दौची तान कौन होची ना विथ द न्यू टेक्नोलोजी विथ द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलोजी कौन होची आमर नुआ नुआ प्रोफेशन भी धीरे धीरे इमर्ज करुच्ची सो द लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री वर सेट अप वेरियस न्यू टाइप ऑफ ट्रेड at distant places and growth of new industrial centers ensured the steady flow of worker from rural areas to emerging urban center. then कौन जिते आमर लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री सेटअप है आम देखुचे बहुत लोक आमर एठू कौन कर ओडिशा रे गुजरात पढ़ाउछंती बा बहुत लोक बॉम्बे पढ़ाउछंती काहेकि ना से एरिया रे इंडस्ट्री ऑलरेडी फ्लरिश्ड जेतेबेले गोटे अर्बान सेंटर्ड ग्रोथ हैला बा गोटे नुआ जगह गोटे इमर्जिंग अर्बान सेंटर्ड हैला तो ये कौन हम से जगार सब कौन हम ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहिबो जेतबेले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहिबो तो डेफिनेटली लोक माने कौन करिवे गोटे पोर रीजन रु गोटे डेवलप रीजन को करि माने माइग्रेट करिवे सो दिस आल्सो क्रिएट्स द चेंज इन द स्ट्रक्चरल चेंज तो जो ऑक्युपेशनल चॉइस जो लोक माने चॉइस कले काहे कले ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. Next is growth of industrial and commercial center. The opening of trading opportunity gave rise to new urban centers equipped with the facilities for the handling large volume of trade. With the emergence of new set of wants, need for settling of industry as much as large scale than before assumed importance. As a result, industrial sector sprang upon the new play of dual role as producer essential in the economy and the distributors market surplus agricultural produce. Like कौन नुआ इंडस्ट्री बाहरला नुआ कमर्शियल सेंटर बाहरला प्रोड्यूसर रहिले कंज्यूमर रहिले समस्तंकर नुआ जिनस प्रोडक्शन करा गला नुआ अर्बन सेंटर आसिला नुआ फैसिलिटी हमर इक्विप करा गला नुआ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आसिला तो सही बढ़िया भाबरे काहे के आसिला ना द कंज्यूमर सही अनुसार डिमांड कले
जो एग्रीकल्चर हो बा इंडस्ट्री हो सर्विस हो एव्री सेक्टर कौन है लोक मानकर नुआ नुआ वांट्स आसिला किभली भाबे प्रोडक्शन अधिका हो पार किपरि भाबे कंज्यूमर कहले आम कम प्राइस रे सुंदर देखा जिनस आम पाई परिबा सो याकू नहीं कौन करागला आमर ना ग्रोथ ऑफ नुआ इंडस्ट्रियल आउ कमर्शियल सेंटर है तो ओवरऑल आम ताको सम अप करिया को जीवा द स्ट्रक्चरल चेंजेस जा हैला कि जो स्ट्रक्चर रे जो परिवर्तन घटिला कहा पाई ना बेसिकली द कंज्यूमर बेसिकली द प्रोड्यूसर बेसिकली द डेवलपमेंटल ट्रैक ऑफ द कंट्री बेसिकली टू रेज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री तो आम जो नुआ नुआ पॉलिसी नौचे कहा नौचे लोक मान नि किभली लोक मैंने अधिक फायदा पाई पारिबे बा देशर किभली भाव में जातीय आय अधिका बढ़ी पारिबो ताकू एत आम चिंता करी कौन करुचे जेकोसी गोटे पॉलिसी तैयारी करुचे से पॉलिसी द्वारा इकोनॉमी रो स्ट्रक्चर कौन धीरे धीरे चेंज होउची सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इंडियन इकोनॉमी थैंक यू